Good morning, students. Hope you all are fine and safe at home. Today we shall discuss about two salts of sodium, that is washing soda and baking soda. How they will prepare their physical and chemical property and uses of washing soda and baking soda. We will discuss about them in detail. So our first compound is washing soda. Washing soda is common name. Its chemical formula is Na2CO3.10H2O. That means it contains 10 molecules of water. So its chemical name is sodium carbonate. For 10 molecules it is decahydrate. Hydrate means water molecule, deca represent 10 molecules. अब यहाँ पे ये ध्यान रखना कि हर एक कंपाउंड का आपको कॉमन नेम और केमिकल नेम पता होना चाहिए. आपके एग्जाम्स में जनरली आपसे कभी भी कोई भी कंपाउंड गिवन होगा और कई बार केमिकल नेम पूछा जाता है, कुछ टाइम्स आपसे कॉमन नेम भी पूछा जाता है. तो आपको ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन पेपर में जो भी क्वेश्चन आता है तो उसको आप ध्यान से पढ़ेंगे और वो देखना है कि केमिकल नेम आपसे पूछा गया है या कॉमन नेम. ठीक है, अगर केमिकल नेम है तो आप केमिकल नेम ही मेंशन करोगे. ठीक है, ये नहीं है कि आपसे क्वेश्चन पेपर में केमिकल नेम पूछा गया है और आप कॉमन नेम लिख रहे हो या कॉमन नेम की जगह आप केमिकल नेम लिख रहे हो. नेम बेशक से ठीक है, लेकिन अगर आप अपोजिट लिखोगे तो वो आपका क्वेश्चन रॉन्ग ही होगा. ठीक है, सो कॉमन नेम इज वॉशिंग सोडा एंड केमिकल नेम इज सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट. इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा. Now washing soda is prepared by Solvay ammonia process. Solvay ammonia process, important process है. This process is used to prepare both washing soda एज वेल एज बेकिंग सोडा. जो हमारा नेक्स्ट कंपाउंड है बेकिंग सोडा, उसकी प्रिपरेशन में भी सेम प्रोसेस ही हम यूज करते हैं. सोल्वे अमोनिया प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बोथ वॉशिंग सोडा एज वेल एज बेकिंग सोडा. सो इट कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेप्स. सो इन स्टेप 1, limestone is heated. Limestone, that is calcium carbonate. When we heat limestone, then it is converted into calcium oxide plus carbon dioxide gas is released. Now in second step, carbon dioxide gas and ammonia gas is passed through aqueous solution of NaCl. In second step, the gas which is produced in step 1, that is carbon dioxide gas and another gas, ammonia gas, is bubbled through the aqueous solution of sodium chloride. Then by their reaction, sodium hydrogen carbonate and ammonium chloride is formed. Or we can say that when carbonated ammonia gas is passed through the aqueous solution of NaCl, sodium bicarbonate and ammonium chloride is formed. Now the sodium bicarbonate is springly soluble in water. Springly soluble मतलब ये completely soluble नहीं होगा, इसका कुछ पार्ट ही soluble रहेगा. तो इसके precipitate basically बनेंगे and ammonium chloride is completely soluble in water. तो अब यहाँ से आपको, हमें तो वॉशिंग सोडा की प्रिपरेशन करनी है, डेट इज सोडियम कार्बोनेट. तो सोडियम कार्बोनेट NaSCO3 से ही बनेगा. तो इस केस में हम क्या करेंगे,
हमें सोडियम कार्बोनेट से अमोनियम क्लोराइड को पहले सेपरेट करना होगा। तो सेपरेशन के लिए देन वी यूज फिल्ट्रेशन टेक्निक, बिकॉज आउट ऑफ दीज टू कंपाउंड वन इज स्प्रिंगली सोल्यूबल एंड अनदर वन इज कंप्लीटली सोल्यूबल इन वाटर। तो देन वी सेपरेट sodium bicarbonate by filtration. Is it clear? Now in third step, we heat the sodium bicarbonate. सोडियम बाइकार्बोनेट यहाँ सॉलिड की फॉर्म में होगा, दैट्स व्हाई इट इज स्प्रिंगली सोल्यूबल इन वाटर. When we heat sodium bicarbonate, on heating it is converted into sodium carbonate plus carbon dioxide gas and water is produced. ठीक है, on heating sodium bicarbonate it produce sodium carbonate plus CO2 plus H2O. तो यहाँ पे जो आपका सोडियम कार्बोनेट आया इट इज एनहाइड्रस फॉर्म, एनहाइड्रस which does not contain any water molecule. ठीक है, फ्रॉम थर्ड स्टेप वी गेट एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट. एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट which does not contain any water molecule. In anhydrous form it is commonly named as soda ash. इसको हम सोडा एश क्यों बोलेंगे? बिकॉज इट डज नॉट हैव एनी वॉशिंग प्रॉपर्टी. एनहाइड्रस फॉर्म में इसकी वॉशिंग प्रॉपर्टीज ये शो नहीं करेगा. फर्दर टू कन्वर्टेड इट इनटू वॉशिंग सोडा दैट इज सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट. वाटर मॉलिक्यूल्स हमें यहाँ पे रिएक्ट करवाने पड़ेंगे. तो फर्दर वी डिजोल्व सोडियम कार्बोनेट इन वाटर. बट हमें तो इसके फॉर्मूले में सिर्फ 10 मॉलिक्यूल्स ही चाहिए. अब यहाँ पे तो हमने एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर में इसको डिसोल्व कर दिया. उसके बाद फर्दर हम क्या करेंगे, उसको हीट करेंगे बिलो 32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. When we heat the aqueous solution of sodium carbonate below 32 degree Celsius temperature, so at 32 degree Celsius temperature it remove the excess amount of water and retain with only 10 molecules of water. So this is our washing soda, or commonly it is named as sodium carbonate decahydrate. So this is the process how to prepare washing soda. For washing soda we use Solvay ammonia process. It consists of 3 steps. In first step, firstly we heat calcium carbonate and produced carbon dioxide gas. Second step में further we pass carbon dioxide and ammonia gas through aqueous solution of sodium chloride. Then it is converted into solid sodium bicarbonate and aqueous solution of ammonium chloride. Then by filtration we separate sodium bicarbonate. Then on heating sodium bicarbonate it produced anhydrous sodium carbonate which is named as soda ash. Then soda ash is further dissolved in water and then evaporate the excess amount of water below 32 degree Celsius temperature. Then it is converted into washing soda. I hope you cleared the process. Next is properties of washing soda. First, washing soda is a white crystalline solid. Crystalline solid we already discussed that crystalline solid means they have a regular arrangement overall 3-dimensional axis. Crystalline solid है, so they have sharp melting and boiling point and high melting and boiling point. Now when sodium carbonate is dissolved in water, then it produced NaOH and carbonic acid. That means sodium carbonate is a mixture of strong base and weak acid. ठीक है, sodium carbonate is formed by a strong base and weak acid, so we can say that sodium carbonate or
Sodium carbonate is made up of strong base and weak acid, that is carbonic acid. So we can say that it is basic in nature. वॉशिंग सोडा बेसिक होगा नेचर में, डेट्स वाई जब भी आप अगर इसको लिटमस पेपर के साथ रिएक्ट करवाओगे देन इट टर्न रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू. नाउ इट इज मेटल कार्बोनेट. मेटल कार्बोनेट है, सो वी ऑलरेडी डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट. नाउ व्हेन मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विद एनी एसिड देन इट प्रोड्यूस्ड मेटल सोल्ट. यहाँ पे मेटल आपका सोडियम है तो सोडियम सोल्ट plus carbon dioxide gas is released along with water. For example, if we take HCl, then the salt NaCl plus CO2 gas plus H2O. Is it clear? Always write balanced chemical equation. Now next is uses of washing soda. Uses, as a name already indicate washing soda, that means it is basically used for washing purpose. Washing soda is used for softening of hard water. It is used for manufacturing of glass. Caustic soda, etc. And the main use of any chemical is that they always used as a laboratory reagent. ये तो सभी केमिकल्स में आएगा, लैब्स में हम सारे केमिकल्स यूज करते हैं किसी न किसी पर्पज से. सो यूज्ड एज laboratory reagent. So this is all about washing soda. सिंपल है. प्रॉपर्टीज हमने ऑलरेडी इसकी डिस्कस कर रखी थी, वही आपकी पुरानी प्रॉपर्टीज ही आई है. लाइक हाउ सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विद वाटर, हाउ इट रिएक्ट विद एसिड. ओके, सोल्ट हाइड्रोलिसिस, रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट विद एसिड, वो रिएक्शन आप ऑलरेडी, ये रिएक्शन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. ये बार बार वही रिएक्शन रिपीट हो रही है. इस टॉपिक में जो आपका मेन था दैट इज प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा. प्रिपरेशन हम करेंगे बाय सोल्वे अमोनिया प्रोसेस, ये ध्यान रखना है. नाउ नेक्स्ट इज बेकिंग सोडा. Now what is chemical formula of baking soda? Baking soda is sodium hydrogen carbonate NaHCO3 and its chemical name is sodium hydrogen carbonate or either sodium bicarbonate. प्रिपरेशन वही सेम अभी हमने किया था. इट इज प्रिपेयर्ड बाय सोल्वे अमोनिया प्रोसेस. सोल्वे अमोनिया प्रोसेस में सेकंड स्टेप में आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा प्रिपेयर हुआ था. इन स्टेप 1 व्हेन वी हीट लाइमस्टोन, ऑन हीटिंग लाइमस्टोन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस्ड. And in second step, when carbon dioxide gas and ammonia gas is passed through aqueous solution of NaCl, then it is converted into baking soda, जो solid form में springly soluble होगा water में, and aqueous solution of ammonium chloride. Now by filtration we separate both sodium bicarbonate with ammonium chloride. Is it clear? वही सेम प्रोसेस है. यहाँ पे आपका सेकंड स्टेप पे ही हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट और बेकिंग सोडा प्रिपेयर हो जाएगा. Now next is properties of sodium bicarbonate. Property again same.
ऐसे ही इट इज अ व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो हाई एंड शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा। नेक्स्ट ऑन हाइड्रोलिसिस इट प्रोड्यूस्ड a strong base that is NaOH and weak acid that is carbonic acid. Sodium bicarbonate is again a salt of sodium hydroxide and carbonic acid. Na positive SiO3 negative वही आयंस बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ से strong base and weak acid, so it is basic by nature। इसका जो pH range होगा, pH range is around 8 to 9, तो वही सारा आएगा लिटमस पेपर के साथ। जब हम इसको रिएक्ट करेंगे देन इट टर्न्स रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। इंडिकेटर्स का कलर याद है ना, द चेंजेस द कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज टू येलो। फिनोप्थलीन का बेसिक मीडियम में कलर पिंक हो जाएगा। इज इट क्लियर? नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज में हम रिएक्शंस करते हैं। रिएक्शन एक तो आपका यही आ गया, हाइड्रोलिसिस ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। देन अभी हमने वॉशिंग सोडा की प्रिपरेशन की थी व्हेन वी हीट बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को जब हम हीट करेंगे देन ऑन हीटिंग इट प्रोड्यूस्ड सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। ऑन हीटिंग इट रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड गिव एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। अगेन मेटल बाइकार्बोनेट ऑन रिएक्शंस विद एसिड। एसिड के साथ जब भी हम इनकी रिएक्शन करेंगे देन दे प्रोड्यूस्ड मेटल सोल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिलीज्ड अलोंग विद वाटर। सेम रिएक्शन आएगी, मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट रिएक्ट सेम विद एसिड, बोथ प्रोड्यूस्ड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। Now next is uses of baking soda. बेकिंग सोडा ऐसा नेम इंडिकेट, इसको हम बेकिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं। इट इज यूज्ड इन कुकिंग एंड बेकिंग। कुकिंग और बेकिंग में हम जो केक है, जो बेक्ड आइटम्स है, उनको सॉफ्ट एंड फ्लफी करने के लिए यूज करेंगे। लाइक केक, पेस्ट्रीज, बिस्किट्स, कुकीज, इनको सॉफ्ट करने के लिए यूज करेंगे। तो यहाँ पे जो कुकिंग और बेकिंग में इसकी जो प्रॉपर्टी यूज होगी व्हेन वी ऐड बेकिंग सोडा। और जब भी आप आइटम्स को बेक करोगे तो बेक करने के टाइम पे हम हीट करेंगे डो को, तो वहां से जो बेकिंग सोडा जब हीट होगा, नाउ ऑन हीटिंग इट प्रोड्यूस्ड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। On heating baking soda, carbon dioxide gases slowly bubbles out which make the dough more soft and expand. You can make it fluffy. Now the another use of baking soda is basically for the preparation of baking powder. Baking powder is basically a mixture of baking soda, tartaric acid and starch. Is a function of baking soda in baking powder. It release carbon dioxide gas which make the baked item more soft and fluffy. टार्ट्रिक एसिड का क्या रोल होगा? अब नाउ अगर हम सिर्फ बेकिंग सोडा का यूज करते हैं तो उस केस में केक सॉफ्ट एंड फ्लफी तो हो जाएगा, बट बेकिंग सोडा गिव्स बिटर टेस्ट। बिटर टेस्ट क्यों प्रोड्यूस करेगा? बिकॉज अलोंग विथ कार्बन डाइऑक्साइड इट ऑल्सो फॉर्म सोडियम कार्बोनेट विच इज बेसिक इन नेचर। बेस भी ये साथ साथ प्रोड्यूस कर रहा है। बेसिक सब्सटेंस की वजह से जो भी हमारा बेक्ड आइटम है उसमें टेस्ट बिटर आएगा। तो उसके टेस्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो बेस बन रहा है, बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए फर्दर हम उसमें एसिड ऐड करते हैं। एसिड दैट इज टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड इज अ माइल्ड एसिड, ठीक है। And what is the role of starch? Starch is produced a contact between the baking soda and tartaric acid. वो इन दोनों को मिक्स करने में हेल्प करेगा। Is it clear? So we always use baking powder in baked items instead of baking soda because baking powder contain tartaric acid which neutralize the bitter taste. ठीक है, अगर हम
सिर्फ बेकिंग सोडा का यूज करें, टार्ट्रिक एसिड उसमें ना हो, तो उस केस में जो हमारे बेक्ड आइटम्स होंगे उनका टेस्ट बिटर टेस्ट होगा। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट, इट इज यूज्ड, जो सेकंड मेन यूज है, इट इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स। फायर एक्सटिंग्विशर्स में यहाँ पे जनरली हम जो सोडा फायर एक्सटिंग्विशर्स यूज करते हैं। नाउ द प्रॉपर्टी ऑन द बेसिस ऑफ विच बेकिंग सोडा इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर इज दैट व्हेन बेकिंग सोडा रिएक्ट विथ एसिड हम फायर एक्सटिंग्विशर्स में सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करते हैं, देन ऑन रिएक्शन विद एसिड वी ऑल नो दैट मेटल सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर इज प्रोड्यूस्ड। तो जैसे ही सोडा, बेकिंग सोडा और सल्फ्यूरिक एसिड कांटेक्ट में आएंगे, देन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हिच हेल्प टू एक्सटिंग्विश फायर। तो दिस इज सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। तो यहाँ पे जो हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर्स होंगे, वो जो सिलेंड्रिकल फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, यहाँ पे एक नोब आपकी होगी, ठीक है, और नोब जो आयरन सिलेंडर होगा उसके अंदर ग्लास बोतल में एसिड प्रेजेंट होगा, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और सिलेंडर में आपका बेकिंग सोडा। नाउ इन केस ऑफ फायर व्हेन वी प्रेस द नोब, जैसे ही हम नोब को प्रेस करेंगे, या यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस भी होगा, ये पूरा का पूरा क्लोज नहीं होगा ग्लास बोतल, या तो आप नोब को प्रेस करोगे तो ग्लास बोतल ब्रेक हो जाएगी, या फिर जब हम सिलेंडर को इन्वर्ट करेंगे तो उस केस में जो एसिड है, एसिड ग्लास बोतल से बेकिंग सोडा के साथ रिएक्ट करेगा, एंड ऑन रिएक्टिंग ऑफ एसिड विद बेकिंग सोडा this reaction takes place which produced carbon dioxide gas which help to extinguish fire. Is it clear? Now the third main use, it is used as an antacid. Now we know that baking soda act as a mild base, so to remove acidity it is always advised to take a small pinch of baking soda. बट ये हाइपर एसिडिटी के केस में यूजफुल नहीं होगा। इट इज यूज टू प्रिवेंट फंगल ग्रोथ, मैनी टूथपेस्ट कंटेन बेकिंग सोडा, बिकॉज बेकिंग सोडा हैज टू व्हाइटन आवर टीथ. Now as it acts like an antacid to it, so it is used to get relief from insect bite which insert acid into the skin. It used to kill insect. And again the most common use that it used as a laboratory reagent. Is it clear? So this is all about washing soda and baking soda, their method of preparation, properties and uses. जो यहाँ पे मेन प्रिपरेशन थी that is सोल्वे अमोनिया प्रोसेस, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, ठीक है. रॉ मटेरियल क्या यूज होंगे सोल्वे अमोनिया प्रोसेस में, that is aqua solution of sodium chloride, ammonia gas, carbon dioxide gas. Is it clear? And the final product formed is सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड. सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड को फर्दर बाय फिल्ट्रेशन हम सेपरेट करते हैं, देन वी गेट बेकिंग सोडा. देन ऑन हीटिंग बेकिंग सोडा it is converted into anhydrous sodium carbonate. Then on dissolving in water, further washing soda is formed. ठीक है. Then their properties and their main uses. I hope you clear both the compounds baking soda and washing soda. Thank you and have a nice day.